Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor और आज हम करने वाले हैं हमारा chapter that is human health and disease. In this video, we will be studying about introduction to health and various types of diseases. Now before we start, we must know what is health. Health क्या चीज़ है? आपकी जो mental state है, आपका जो mind है, that affects your health. Actually, according to some Greek philosophers and Indian Ayurveda, it was thought that health is a balance of certain humors in your body. According to them, the people who have black bile in their body, they suffer from certain fevers. But this hypothesis was disapproved when William Harvey discovered the circulation of blood in our body. So what is health? Health is actually the physical, mental and social well-being of a person, right? If you are healthy, you will be more productive at work. You will be more productive at work, it will lead to more economic prosperity. Now let us see what is health actually. Health means absence of disease or it is physical fitness. State of physical, mental, social well-being को हम क्या कहते हैं? Health कहते हैं, right? If you are healthy, it will lead to more longevity in the people, right? It will reduce the infant and maternal mortality also, right? Now, how we can achieve the good health? By taking balanced diet, by keeping personal hygiene, by taking regular exercises, all that can help us to achieve the good health. Even yoga affects your mental state and physical state of the body, right? Now, how you can do to achieve the good health, right? There should be awareness among the people for various diseases. ठीक है, अलग अलग डिजीजेस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. ठीक है, उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं आपके बॉडी फंक्शंस पे, इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट? वैक्सीनेशन मींस इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस. कौन कौन से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, दैट शुड you should know or they should be inculcated, they should be practiced, right? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए. वेक्टर्स का कंट्रोल का सिस्टम होना चाहिए. जो भी वेक्टर्स हैं, एनोफिलीज, क्यूलेक्स एटसेट्रा, दे शुड बी कंट्रोल्ड, राइट? हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, there should be maintenance of all these hygienic food and water resources, right? Now we will talk about various types of diseases which occur in our body. Now disease क्या होता है? First of all, disease is something malfunctioning or disturbance in the functioning of any part of the body. और आपको कैसे पता लगता है disease हुआ है? Through by seeing some signs and symptoms of the disease, right? अब diseases को हम दो categories में divide कर सकते हैं depending upon how they are spreading, right? They can be some infectious diseases, right? Infectious diseases कौन से होते हैं? Which can easily spread from one person to another. इस कैटेगरी में एड्स एक वेरी फेटल डिजीज है and which leads to the ultimately death of the person, right? अदर जो infectious diseases हैं वो हैं common cold, malaria, tuberculosis, etc. etc. ठीक है, फिर आ जाओ नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. वो क्या है? जो विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. इसमें आगे हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज प्लस वेरी ड्रेडेड डिजीज दैट इज कैंसर. ठीक है, तो ये हमने बात की टाइप्स ऑफ डिजीजेस की. अब जो आपकी हेल्थ को कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, इन फैक्टर्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिस्कस करना है. वन आर जेनेटिक फैक्टर्स, अनदर आर लाइफस्टाइल फैक्टर्स एंड थर्ड आर सर्टेन इन्फेक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन योर बॉडी. अब जेनेटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? मींस डेफिशिएंसीज which are inherited from the parents to the offsprings. ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो इनहेरिट होती हैं, कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज बॉडी में जो इनहेरिट होती हैं, उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स.
ठीक है, जेनेटिक डिजीजेस भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो आपके लाइफस्टाइल के कारण होते हैं, राइट। लाइफस्टाइल में क्या आ जाएगा? द टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, द टाइप ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग, द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ रेस्ट यू आर टेकिंग, टाइप ऑफ फूड यू आर टेकिंग, और आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आपका हाइजीन लेवल कैसा है, ये सब क्या है? लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो डिजीज की अकरेंस में काम करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आ जाएगा इन्फेक्शंस, जैसे कुछ एयरबॉर्न इन्फेक्शंस हैं या सॉइल बॉर्न इन्फेक्शंस हैं, दे हैपन इन योर बॉडी, दे आर इन्फेक्शंस, ठीक है। अब इन डिजीजेस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, वन आर कम्युनिकेबल, अदर आर नॉन कम्युनिकेबल, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस स्लाइड, राइट। नाउ जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो कैसे स्प्रेड होते हैं? दे स्प्रेड बाय एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट और बाय सम एनिमल्स, ठीक है। एयरबॉर्न हो सकते हैं, वाटरबॉर्न हो सकते हैं, फिजिकल कांटेक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन, या फिर थ्रू सम एनिमल्स, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीजेस में कौन से आ गए? अलग अलग एजेंट्स हैं जो इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करते हैं। दे कैन बी वायरसेस, दे कैन बी बैक्टीरिया, दे कैन बी फंगल, दे कैन बी वर्म्स, दे कैन बी प्रोटोजोन्स। ये सब क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। हाउ वी कैन कंट्रोल दीज डिजीजेस, इनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट बिल्ड्स द इम्यून सिस्टम ऑफ योर बॉडी एंड दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, ठीक है। अपनी पर्सनल हाइजीन प्रॉपर रखें, ठीक है, उससे भी आप प्रोटेक्शन पा सकते हैं डिजीजेस से। अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट वेरियस डिजीजेस, वैक्सीनेशन प्रॉपर लें टाइम टू टाइम, दैट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सर्टन डिजीजेस। एंड यू इफ यू टेक प्रॉपर फूड एंड वाटर, मीन्स अनकंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको इन्फेक्शियस डिजीज से बचा सकता है, ठीक है। अब आ जाओ नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं स्प्रेड होते, ठीक है। अब इनके कारण क्या है? स्ट्रेस, जो आपकी भागती दौड़ती जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस आता है, इट कैन बी स्ट्रेस ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स आल्सो दैट कॉजेस these diseases, right? अगर हम बात करें stress plus some physical activity नहीं है, right? You are not doing some exercises, that also causes diseases, these diseases. It can be some genetic causes, it can be taking some unsuitable diet, right, or wrong lifestyle you are having, or you are being continuously exposed to carcinogens that can lead to these non-infectious diseases. अब इनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, स्ट्रेस को लेवल्स को कंट्रोल करना बॉडी में, राइट, बाय डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइजेस आल्सो, बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, अवॉइडिंग ड्रग्स, अल्कोहल एंड टोबैको, ठीक है। तो इन रीजन से हम क्या है, वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम सम non-infectious diseases, right? Now we talk about different types of diseases. अब हमने diseases को अलग अलग categories में divide कर दिया accordingly जो agent उनको disease causing agent जो भी हो, ठीक है, accordingly we have different categories of diseases. For example, we have bacterial diseases, ठीक है। bacterial diseases में आ गया pneumonia, plague, typhoid, diphtheria, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं किसके? बैक्टीरियल डिजीजेस के। फिर आ जाओ वायरल डिजीजेस, जिसमें जो है वायरस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें आ गया कॉमन कोल्ड, जिसको हम राइनिटीज भी कहते हैं, पोलियो आ गया, स्मॉल पॉक्स आ गया, मीजल्स आ गया, ये सब क्या है? वायरल डिजीजेस हैं, ठीक है। फिर आ जाओ डिजीजेस जो प्रोटोजोआ से होते हैं, प्रोटोजोन्स कैरी करते हैं। इट कैन बी अमीबॉइसिस, इट कैन बी मलेरिया, राइट, ये कुछ एक डिजीजेस हैं जो प्रोटोजोअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। देन वी हैव फंगल डिजीजेस, दिस कैन बी रिंगवर्म, इट कैन बी एथलीट्स फुट एटसेट्रा, राइट। तो ये हो गए वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस एंड वी आर लेफ्ट विद वन मोर, दैट इज हेलमिंथिक डिजीजेस। हेलमिंथ्स के द्वारा होते हैं, वर्म्स के द्वारा होते हैं, एंड दीज आर जनरली एंडोपैरासाइट्स in your body, right? जिसमें Ascariasis, Filariasis, Tianisis, these are the different categories of helminthic diseases. Now ये सारे जो disease causing agents हैं, disease causing organisms हैं, इनको हम क्या नाम देंगे? Pathogens. So अगर हमें डिफाइन करना है पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या कहते हैं? पैथोजेंस, राइट। अब ये पैथोजेंस जो हैं, कुछ पैथोजेंस इनमें से एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, जो होस्ट के अंदर रहते हैं, एंड दे कॉज हार्म टू द होस्ट. सो एंडोपैरासाइट्स दे कॉज
हार्म टू द होस्ट। क्लियर है इतना? ठीक है। अब पैथोजेंस की बात करूं, ये कहीं से भी एंटर कर जाते हैं। दे एंटर थ्रू वेरियस मीन्स, ठीक है, एंटर बाय वेरियस मोड्स, यू कैन से दे एंटर थ्रू वेरियस मीन्स इन द बॉडी, मल्टीप्लाई एंड दे कॉज डिजीजेस। ठीक है, दे कॉज डिजीजेस। क्लियर? नाउ ये जो पैथोजेंस की हम बात कर रहे हैं, एक इनकी खास बात है, दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, दे नीड टू अडैप्ट देमसेल्व्स टू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। They need to adapt to the internal environment of the body। जैसे कि हम बात कर रहे हैं गट में जो पैरासाइट्स, जो भी पैथोजेंस एंटर करते हैं गट में, दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। जो पैरासाइट्स या जो पैथोजेंस एंटर करते हैं गट में, दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। किससे प्रोटेक्ट करना है उनको? फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस, तभी तो वो वहां पे सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गई पैथोजेंस की बात। पैथोजेंस क्या चीज होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग तरीके से बॉडी में एंटर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्लियर है? ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस। एक बार क्विक लुक लेते हैं इनके तरफ, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नाउ एस्केराइसिस कॉज्ड बाय एस्केरिसिस, और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग, मींस बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है कई बार। बेसिकली ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। ठीक है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज टेक्स प्लेस। क्लियर? रिंग वर्म विच इज कॉल्ड बाय ट्राइकोफाइटोन, और भी जो जेनरा है जिसकी वजह से रिंगवर्म होता है, उनके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। ट्राइकोफाइटोन है, एपिडर्मोफाइटोन है, राइट, माइक्रोस्पोरम है, ऐसे बहुत सारे जेनरा हैं जिसकी वजह से ये रिंगवर्म हो जाता है। ठीक है, फंगल डिजीज है, और इसमें क्या होता है? ड्राई स्केली लेशंस नजर आती हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिर्फ मैं हर्डली यहाँ पे आपको सिम्टम्स और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। वी आर गोइंग टू टेक अप डिजीजेस वन बाय वन इन मोर डिटेल्स। ठीक है, टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी, और इसमें क्या होता है? हाई फीवर, वीकनेस, हेडेक, स्टमक पेन, ये सब सिम्टम्स जो हैं, कॉन्स्टिपेशन, किस में देखने को मिलते हैं? टाइफॉइड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, निमोनिया की बात करें, किसके ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन सा है? कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इसको हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाई फीवर हो जाता है, फीवर होता है, रिलैप्स ऑफ फीवर अगेन एंड अगेन, चिल्स होती हैं, ठंड लगती है, कफ एंड हेडेक। ठीक है, फिर कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? राइनोवायरसेस की वजह से, इसको हम राइनिटीज भी बोलते हैं। इसमें नेजल कंजेशन हो जाती है, नोज की ब्लॉकेज हो जाती है, डिस्चार्ज निकलता है, थ्रोट में कुछ खराश पैदा हो जाती है, कफ होती है, हेडेक होता है। ये सब क्या है? किसके सिम्टम्स हैं? कॉमन कोल्ड के। ठीक है, फिर फिलेरिसिस जो कि अगेन हेलमिंथिक डिजीज है, राइट। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई या वुचेरिया मलाई की जो है, दे आर द कॉजल एजेंट्स। ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है लोअर लिम्स की, जिसकी वजह से लिम्स जो हैं बहुत सारी सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, एंड द पर्सन इज अनएबल टू वॉक ऑल्सो। हम ये एक एक डिजीज को हम वन बाय वन टेकअप करने वाले हैं। ठीक है, नाउ बैक्टीरियल डिजीज की मैं बात करने वाली हूँ, स्टार्ट करने वाली हूँ, राइट। बिफोर दैट लेट अस लुक एट द डेफिनेशन ऑफ पैथोजेंस वंस मोर, राइट। नाउ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब जो भी डिजीजेस कॉज करते हैं मैन के अंदर, उनको हम सब को क्या कहते हैं? पैथोजेंस। ठीक है, अगेन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस। ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक अप बैक्टीरियल डिजीज, एंड दैट बैक्टीरियल डिजीज इज व्हाट? टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड को हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम एंटेरिक फीवर। आप सबने टाइफॉइड के बारे में सुना होगा, और किसी को शायद हुआ भी होगा टाइफॉइड में। आपको पता है हाई ग्रेड फीवर हो जाता है 39, अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस तक फीवर जो है इतना हाई चला जाता है। या फिर हम फ़ारेनहाइट में कहें तो इट कैन गो अप टू 103 टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट्स, राइट। एंड कॉजल एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइफी।
क्या है कॉजल एजेंट इसका? साल्मोनेला टाइफी, राइट। इसमें जो ऑर्गन्स को अफेक्ट होता है, स्पेशली जो ऑर्गन्स जिसमें ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा, ठीक है। अदर ऑर्गन्स में भी ये ब्लड के थ्रू माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इट इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर केसेस में जो इन्फेक्शन का कारण क्या है? बाय टेकिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। अब हम इसके अगर सिम्टम्स की बात करें, ठीक है, सिम्टम्स क्या है इसमें, ठीक है। सिम्टम्स है, मैंने कहा हाई ग्रेड फीवर विच कैन राइज अप टू 39 डिग्रीज टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना हाई चला जाता है। अब बेसिकली ये क्या करता है? इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, इसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेजेस कैन टेक प्लेस, ठीक है, क्लियर। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, हाई फीवर होता है, वीकनेस इन द बॉडी, फटीग इन द बॉडी, राइट। ये सब क्या है? इसके सिम्टम्स हैं, किसके? टाइफॉइड के, ठीक है। नाउ सिम्टम्स इसमें मैंने कहा मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेजेस या इंटेस्टाइनल परफोरेशंस भी हम कह सकते हैं, राइट। इंटेस्टाइनल परफोरेशंस, क्लियर। इसमें स्टमक पेन भी हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिलती है, ठीक है। हेडेक भी होता है, वीकनेस भी होती है, फटीग भी होती है। कोई भी बीमारी हो, वीकनेस फटीग तो होगी ही होगी, राइट। तो दैट इज दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ द टाइफॉइड, राइट। नाउ लेट अस लुक एट द बैक्टीरिया। नाउ दिस इज बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। अब बैक्टीरिया, हम टाइफॉइड की बात कर रहे हैं तो एक नाम लेना बहुत जरूरी है, मैरी मेलन। मैरी मेलन कौन था? ये कुक थी, राइट, विच वॉज कॉल्ड एज she was cook by profession, and she was a carrier of typhoid for many years, ठीक है। तो ये नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि she was cooking food for the some people, and she used to carry she became a carrier of the germs for many years. So name was Mary Mellon, right? Now अब बात करें नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज की, जो कि है निमोनिया। निमोनिया आपने सुना होगा, ठंड लगती है, बुखार आता है, खांसी हो जाती है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाती है, चेस्ट में जकड़न हो जाती है, पेन होता है चेस्ट के अंदर, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगेन निमोनिया क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, और इसमें बेसिकली क्या होता है? ये लंग्स की क्या है? इन्फ्लेमेशन होती है। यू कैन सी दिस लंग्स, एयरवेज, लंग्स की जो बेसिक यूनिट है उसको हम कहते हैं एल्वुलाई, ठीक है। ये जो एल्वुलाई है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल नॉट टेक प्लेस प्रॉपर्ली, बिकॉज एल्वुलाई वो चीज है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन हो गई, इनके ऊपर कोटिंग सी जम गई है, उसकी वजह से जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन का वो अफेक्टेड होगा। जब एक्सचेंज अफेक्टेड होगा तो क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, ठीक है, चिल्स, ठंड लगना, फीवर, ठीक है, पेन इन चेस्ट, ये सब सिम्टम्स जो हैं निमोनिया के देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्लस इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, ऑल दैट, प्लस शेयरिंग यूटेंसिल्स और इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, ऑल दैट, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। बेसिकली किस पार्ट को इफेक्ट करता है? एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। एल्वुलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड से भर जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? कफिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस,
ठीक है, एक ये भी सिम्टम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कफिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो ये क्या है, alveoli, this is pneumonia. Actually other parts also sometimes they are affected by this bacteria, that is sinusitis or meningitis, all these bacteremia, pneumonia type A, this is non type A, right, type B, all these, right। तो ये क्या है, निमोनिया। निमोनिया की हमने बात की जिसमें एल्वेलाई बेसिकली अफेक्ट होता है, क्लियर। अब हम बात करेंगे वायरल डिजीजेस की। वायरल डिजीजेस जिसमें कॉजल एजेंट क्या है, वायरस है, ठीक है। इसमें हम एक एग्जांपल की बात करेंगे जो कि है कॉमन कोल्ड, या फिर हम इसको राइनेटीज भी बोलते हैं, ठीक है, राइनेटीज, बिकॉज इसमें राइनो वायरसेस के द्वारा ये स्प्रेड होता है। बेसिकली ये इफेक्ट करते हैं नोज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को, पर लंग्स को कोई इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली नेजल कंजेशन, नीज का ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, म्यूकस बनती है, डिस्चार्ज बनता है, डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रोट होता है, राइट, सोर, उसकी वजह से वॉइस जो है थिक हो जाती है, अजीब सी आवाज़ आती है, ठीक है, कफिंग होगी, हेडेक होगा, टायर्डनेस होगी, ये सब जो है सिम्टम जो कि 3 to 7 डेज तक लास्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट द पर्सन बिकम्स नॉर्मल, ठीक है। इन्फेक्शन कैसे फैलती है, कफिंग के द्वारा, स्नीजिंग, छींक आने के द्वारा, ठीक है, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द नॉर्मल पर्सन, राइट। और इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे पेन, बुक्स, कप्स, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, इनके थ्रू भी ये इन्फेक्शन जो है फैल सकती है, स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हेलमिंथिक डिजीजेस की, जिसमें है पहला नाम एस्केराइसिस का। एस्केराइसिस, this is caused by worms. Basically ascariasis जो है it is found in the large intestine. It is an endoparasite in the body, right? It affects the large intestine. ठीक है, एस्केराइसिस में दो मेल एंड फीमेल, फीमेल इज लॉन्गर देन द मेल। अब ये कैसे स्प्रेड होता है, थ्रू फीस, जो फीसेस होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, व्हेन दे हैपन टू इन्फेक्ट द वाटर एंड द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट, दे कॉज द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, right? So infect this water, vegetables and fruits which are contaminated by the feces of the infected person, right? They cause the diseases. Symptoms क्या हैं? Basically internal bleeding also can take place, muscular pain होता है, fever होगा, anemia होगा, blockage of intestinal passage will take place because ये basically intestines को affect करता है, ठीक है। As you can see this is the person, right? जिसके अंदर ये worm enter कर रहा है, राइट। अब इसमें देख रहे हो ये वर्म की दोनों फॉर्म्स है, मेल एंड फीमेल, राइट। फीमेल इज लॉन्गर एंड दिस इज मेल इज स्मॉलर, राइट। अब इसमें ये जो है अनफर्टिलाइज्ड एग्स ले करता है। जब ये एग्स ले करता है, व्हेन दे बिकम फर्टिलाइज्ड दे चेंज इनटू दिस स्ट्रक्चर, राइट, एंड स्लोली ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं दे विल इसमें इन्फेक्टिव स्टेज ये तैयार हो जाएगी धीरे धीरे, दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज। और जब ये इन्फेक्टिव स्टेज इस बॉडी में एंटर करेगी, जाके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगी। इंटेस्टाइन में अगेन व्हेन दिस इट passes the stools or it undergoes जब ये इजेशन करता है, वेस्ट रिमूव करता है, तो फेसेस के साथ जो है इन्फेक्टिव स्टेज बाहर रिलीज हो जाती है अगेन, राइट, एंड दिस चेंजेस इनटू दीज वर्म्स। अगेन ये पूरा साइकिल जो है इस तरह से रिपीट होता है फिर, ठीक है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केराइसिस। नाउ नेक्स्ट हेलमिंथिक डिजीज है एलिफेंटाइसिस या फाइलेरियासिस। एक तो ये इसको नाम दिया है फाइलेरियासिस बिकॉज क्योंकि ये फाइलेरियल वर्म के द्वारा स्प्रेड होता है। फाइलेरियल वर्म जिसको हम बोलते हैं वुचीरिया बैनक्रॉफ्टाई। सो ये फाइलेरियल वर्म का स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, वुचीरिया बैनक्रॉफ्टाई। और इसको जो कैरी करता है, इसका जो कैरिंग एजेंट है दैट इज क्यूलेक्स mosquito, right? This is Culex mosquito which carries this filarial worm from one person to another, right? Elephantiasis क्यों बोलते हैं? Because इसमें जो affected region है, especially lower limbs, वो elephant like हो जाते हैं, उनमें swelling हो जाती है, उनमें पानी भर जाता है, ओडीमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो elephant like look देते हैं, ठीक है। अब इसके causes क्या हैं? It is caused by filarial worms, that is Wucheria bancrofti और Wucheria melai, right? Mode of transmission क्या है इसका? It is transmitted by the bite of Culex mosquito. बहुत important है, याद रखने वाला है,
राइट। अब आप देख रहे हो एलिफेंटाइसिस, इसमें ये जो लोअर लिम्स हैं इतने थिक हो जाते हैं, ये नॉर्मल पार्ट है, ये अफेक्टेड लिम्ब है जिसमें स्वेलिंग इतनी हो गई, स्पेशली लिम्फ नोड्स में ये जाके अफेक्ट करता है, राइट, जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ वाटर हो जाती है बॉडी में, एडिमा हो जाता है, एंड इट कॉजेज द स्वेलिंग इन दैट अफेक्टेड पार्ट। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द जेनिटल ऑर्गन्स को भी स्वेलिंग हो जाती है, कई बार अफेक्ट करता है, ठीक है। नाउ Culex is the female which is the vector of the disease, right? Genital organs, they are also affected, leading to deformation. Clear? Symptoms क्या है? Inflammation of the organs in which they live for many years. Normally they affect the lymph vessels or the lymphatic nodes, right? तो ये है किसके बारे में? एलिफेंटाइसिस के बारे में, दैट इज फिलेरिसिस और एलिफेंटाइसिस। ये हमने बात की कुछ डिजीजेस की। वी आर लेफ्ट विद प्रोटोजोअल डिजीजेस विच वी आर गोइंग टू टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर लें, राइट। नाउ गिव द नेम द कॉजल एजेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का कॉजल एजेंट कौन सा है? इट इज साल्मोनेला। कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी इज द कॉजल एजेंट ऑफ टाइफॉइड। क्लियर है? ठीक है। व्हाट रिजल्ट्स इन कॉमन कोल्ड? कॉमन कोल्ड को हम राइनेटिस भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय राइनोवायरसेस, ठीक है। राइनोवायरसेस दे कॉज द कॉमन कोल्ड, ठीक है। नेम द फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर हेल्थ। कौन से फैक्टर्स आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? इनको हमने 3 कैटेगरीज में स्टडी किया। एक आ गए जेनेटिक फैक्टर्स, दूसरे लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ठीक है, और तीसरा आ गया इन्फेक्शंस विच अकर इन आवर बॉडी, राइट। So this is all about some diseases in this video. We will come again with another interesting video very shortly. Till then, keep learning, keep watching, and goodbye.